हमने थोड़ा सा EGL और HGL, दैट इज एनर्जी ग्रिड लाइंस और हाइड्रोलिक ग्रिड लाइंस को डिस्कस किया और डिफाइन किया। तो इनके बारे में थोड़े से पॉइंट्स और मेंशन कर दिए जाएं। दैट फॉर स्टेशनरी बॉडीज सच एज रिजर्वायर्स और लेक, यानी खड़े पानी को या खड़े लिक्विड को जहां पर हो वहां EGL और HGL दोनों बराबर हो जाती हैं, क्योंकि फ्री सरफेस दोनों के लिए एक ही है। द EGL इज ऑलवेज a distance v square over 2g above HGL, ये हम पहले मेंशन कर चुके हैं। लेकिन अगर फ्लूइड ही स्टेशनरी है तो फिर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, क्योंकि जब वो स्टेशनरी होगा तो v की वैल्यू गालबन 0 होगी, तो फिर ये इसलिए दैट इज द पोजीशन। सो इन एन आइडियलाइज्ड बर्नौली टाइप फ्लो EGL इज हॉरिजॉन्टल एंड इट्स हाइट रिमेन्स कांस्टेंट। और ओपन चैनल फ्लो में जैसे रिवर आ सकता है, नहरें हैं, खाड़े हैं हमारे, एंड सो ऑन, तो वहां पर अगेन द वैल्यू, द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस is represented by v square over 2g. At a pipe exit, however, the pressure head is 0, which means कि वो, that is the pressure value is equivalent to the atmospheric pressure, and therefore the hydraulic grade line coincides with the pipe outlet. Pipe outlet पे जो pressure है वो atmospheric pressure है और वही HGL है। Mechanical energy loss due to frictional effects या conversion to thermal energy causes EGL and HGL to slope downwards in the direction of the flow. The slope is a measure of the head loss in the pipe. A component such as a valve that generates significant frictions effects causes a sudden drop in both EGL एंड HGL। तो इसीलिए इनफैक्ट जब वॉल्व वगैरह इन्वॉल्व हों तो फिर बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करने को अवॉइड किया जाता है। मगर बहरहाल ये पहलू, ये ऑब्जर्वेशन माइंड में रखने की ज़रूरत है। ए स्टीप जंप और ड्रॉप अकर्स इन EGL और HGL whenever mechanical energy is added or removed to or from the fluid, that is due to pump or turbine या इसी तरह ये फॉर्म। क्यों? क्योंकि इनसे हीट जनरेशन ऐड हो जाती है, so they creates problems and therefore the validity of Bernoulli's equation becomes a question. It raises a question on that. The gauge pressure of a fluid is 0 at location where HGL interacts a fluid. क्यों? क्योंकि वहाँ पर atmospheric pressure के बराबर हो जाता है। And similarly, the pressure in a flow section that lies above HGL is negative, and the pressure in a section that lies below HGL is positive. ये चीज़ दोबारा यहाँ भी दिखाई गई, ये हम पहले भी शो कर चुके हैं। तो इफ दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, द मैक्सिमम लाइन वेयर EGL is being represented, EGL is the sum of all energies in which P over rho g is included, V square over 2g is included, and the reference level, the height Z is included. तो देखिए the difference between dotted line and the straight line. So that portion, that difference is due to V square over 2g, and that is why EGL is higher than the HGL. HGL the hydraulic grid line and EGL represent the energy grid line. Similarly, we have mentioned about the steep jump that occurs whenever mechanical energy is added to the fluid by a pump. The gauge pressure is 0 at location
where the HCl intersects the fluid. तो ये यहाँ पर ये बताया गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर दोनों बराबर होते हैं. HCl अगर फर्ज किया ये यहाँ टच करता है, इंटरसेक्ट करता है फ्लूइड को, सो एट दैट प्लेस द प्रेशर इज 0. अगर एक लार्ज टैंक से लेट से उसका मुंह खोल दिया जाए और द वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू, चाहे उसमें हम पाइप अटैच कर दें या एक होल हो या वॉल्व हो, उसको खोल दिया जाए, और या जैसे टैप वाटर होता है कि टैंकी में से पानी आ रहा है, सो इन दैट केस आवर बर्नौलीज इक्वेशन approximately gives us these values, and we have Z1. The other terms are almost equivalent to 0, and we get Z1 equal to V2 square over 2G, where the points that are noted here are, this point is taken to be as 1, and here the point is taken to be as 2. तो velocity यहाँ जो होगी वो V2 होगी और यहाँ जो होगी वो V1 होगी. So you can see here at the top the velocity is 0, whereas here since the fluid will be flowing, तो यहाँ पर जो velocity है वो non-zero होगी. The flowing water will have some value. ये इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसी तरह से कि हम साइफन करते हैं, स्प्रे कर रहे हैं इनटू द एयर, या खेतों में पानी दे रहे हैं एंड सो ऑन. यहाँ पर मसलन वाटर या फ्यूल डाल रहे हैं गाड़ी में और उसके लिए गैसोलीन साइफन कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यूज शो की गई हैं. सो दे आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स रेफरिंग टू EGL and HGL. Another example for velocity measurement by using a pitot tube. And finally, जब बहुत ज़्यादा तूफ़ानी कंडीशन हो जाए या प्रेशर चेंजेस हों, तो फिर उस तरह की ये पिक्चर्स शो हो रही हैं. एक्सट्रीमली लो प्रेशर at this point, what they call as eye of the storm, और लेकिन जहाँ पर हायर प्रेशर होता है वहाँ पोजीशन और है. लेकिन इफ देयर इज ए बिग प्रेशर डिफरेंस, लार्ज प्रेशर डिफरेंस, तो उसी से तूफ़ानी कैफियत पैदा होती है. ये बहुत सारे दुनिया के इलाकों में होता रहता है. पर्टिकुलरली एवरी नाउ एंड देन हम सुनते हैं कि अमेरिका में मसलन अटलांटिक ओशन के ज़रिए बहुत ज़्यादा जनरेट होता है. एंड एवरी टाइम फ्रॉम टाइम टू टाइम वी हेयर कि वहाँ तूफ़ान आ गया और उसने बहुत ज़्यादा फिर तबाही मचाई, क्योंकि जो प्रेशर डिफरेंस इतना ज़्यादा होता है कि उससे सतह समुंदर से वेव्स जनरेट होती हैं, और जो वेलोसिटी, जो विंड्स जनरेट होती बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस, वो इतनी तेज़ होती हैं कि आमतौर से अबव 100 माइल्स पर आवर की स्पीड से वो विंड्स चल रही होती हैं, और रास्ते में जो चीज़ आए, मकान हों या बिजली के खंभे हों या कोई और स्ट्रक्चर्स हों, उनको तबाह कर देती हैं. सो दीज वर some points that we wanted to mention about EGL and HGL.